محبوب شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ معروف ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہیں، آئی ٹی سے تعلق ہے، بہت کو ٹریننگ دیتے ہیں. سر بتائیں کوئی ٹیکنالوجی کچھ ہیلپ کر سکتی ہے لوگوں کی جان بچانے میں؟ ڈی آئی جی صاحب نے جو بات کی کہ بھائی اتنے کروڑ کا شہر ہے اور 5,500 کے قریب ہمارے پاس لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو پاکستان ایک غریب ملک ہے اور اس غریب ملک میں جو ہے اگر آپ جو ہے 1 لاکھ جو ہے وہ لوگ لے کے آئیں گے اس کو رکھنے کے لیے، تو ان کی سیلریز اور یہ ساری چیزیں یہ گورنمنٹ پھر ٹیکس لگائے گی لوگوں پہ، وہیں سے یہ چیزیں نکلیں گی. تو اس کا سولوشن صرف ٹیکنالوجی میں ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے نا ان ساری چیزوں کو ایک بندہ جو ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہو، وہ جو ہے وہ 500 لوگوں کے برابر جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہو. یہ سولوشن ہے. بالکل آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے کامران عاشق صاحب جو کہ موٹر وے پولیس سے تعلق ہے. سر موٹر وے پولیس ٹھیک ہو سکتی ہے تو ہماری جو نارمل پولیس ہے ٹریفک پولیس وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا. دیکھیں دوسرے ادارے کی بہتری تو اس کی ذمہ داری دوسرا ادارہ خود لے تو بہتر ہے. البتہ موٹر وے پولیس کی جہاں تک بات ہے تو یقیناً جو اس کی اپائنٹمنٹ ہے وہ ایک اچھی ایجوکیشن کی بیس پر جتنے آفیسرز ہیں جو اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کی یقیناً اچھی ایجوکیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد ڈسپلن، ادارے کی ٹریننگ اور ڈسپلن میٹر کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کی کسی بھی ادارے کی جو بہتری ہے یا کامیابی ہے وہ اچھی کمیونیکیشن کے اوپر ہے. تو دوران ڈیوٹی اوبیسلی جب ہماری کمیونیکیشن ایک دوسرے آفیسرز کے ساتھ اچھی ہوتی ہے، کوآرڈینیشن ہوتی ہے، تو ایک اچھا رزلٹ سامنے آتا ہے. جی آصف موسیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، ممبر پروونشل اسمبلی. آصف صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب یہ سارا بات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس پر جا رہی ہے، سب لوگ ابھی سمیتا یہاں موجود تھی اسپوکس پرسن، انہوں نے کچھ جواب دینے کی کوشش کی، کچھ آپ بھی جواب دیں گورنمنٹ کی طرف سے. اس میں رحمت صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، لیکن گورنمنٹس کی بھی ذمہ داری ہے بہت ساری. جس طرح ہاسپٹلس کے حوالے سے میری بہن کہہ رہی تھی اور بھائی نے بھی کہا، تو ہاسپٹلس جو ہے نا وہ الاؤ ہو گئے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی ایمرجنسی پیشنٹس وہاں پہ جاتا ہے، سارے مولانا صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور 8 آف دا اسٹیٹ ہاسپٹل ہے. جس طرح وہ علاج کے معاملے میں اگر کوئی ایمرجنسی جاتی ہے وہاں پر تو فوری بغیر کسی حجت کے اس کا ٹریٹمنٹ اور علاج کا وہاں پہ فوری بندوبست کیا جاتا ہے، نہ کہ سفارش کی ضرورت ہے. میڈم میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، فرمائیے کہ ابھی جیسے انہوں نے کہا تو جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور خاص طور پر ہیڈ انجری ہوتی ہے، پہلے تو ظاہر بات ہے اگر موٹر سائیکل پہ آپ نے نہیں پہنا ہوا ہیلمٹ تو پھر تو ہیڈ انجری ہونی ہے. اس کے بعد ابھی میرے سامنے کیس آیا، میں آدھی رات کو رمضان میں پہنچا جنا ایمرجنسی میں، اس کے بعد وہاں پہ جس طرح میری پورا جبڑا ٹوٹا ہوا، دانت ٹوٹے پہ وہیں برے حال میں وہیں ٹانکے لگ رہے اور کہہ رہے ہفتے بعد، پھر پرائیویٹ میں کروایا تو جا کے ہوا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سینئر ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے وہاں پہ اور 24 آور ایمرجنسی سسٹم ہونا چاہیے ایمرجنسی کے اندر؟ ان کنٹینیوشن آف مائی پریویس تھنگ، دیکھیں یہی بات ہو رہی تھی کہ آپ کسی ایک چیز کو نہیں دوش دے سکتے. اوبیسلی آپ کا جو کوشچن ہے کہ جی ہر مریض کو پرائیویٹ لے جائیں، ایسا نہیں ہے. اوبیسلی ہمیں سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے، ہیلتھ سسٹم کو بھی. تو ٹراما از دی 4th لیڈنگ کاز آف ڈیتھ. اور اگر آپ لو سوشو اکنامک جو ہمارے کنٹریز ہیں وہاں دیکھے جائیں تو یہ اور مزید زیادہ صورتحال خراب ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ جی آپ پرائیویٹ سیٹ اپ میں بھی آپ ٹراما کیسز کو لے کے جا سکتے ہیں، تو یہ برڈن کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا جو ہے یہ ایک سسٹم اب بن جانا چاہیے. اور جیسے یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی MLO کیسز اینڈ آل دیٹ، تو اب ہمیں پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی الاؤ کر دینا چاہیے کہ دے کین ڈیل ود ٹراما اینڈ ٹراما پیشنٹس. اور اس کا ایک پراپر ایک سسٹم اور ایک ہیلتھ سسٹم اور ٹراما سینٹرز کو مزید جو ہے ہمیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ برڈن آف ڈیزیز ہے، سوشو اکنامک برڈن ہے ہماری کنٹری پہ. جی بہت بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا. صرف ایک چیز میں آپ کو ٹیک ہوم میسج یہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے موبائل تو یوز کر سکتے ہیں. آپ اپنے موبائل پہ گوگل کر لیں بیسک لا آف روڈ ٹریفک، اور وہ چیزیں اپنا لیں اور پھر جا کے آپ لائسنس کے لیے جائیں. پھر اگر کوئی 500 روپے لیتے تو آپ گورنمنٹ کو جا کے کہیں کہ بھائی مجھ سے کس لیے 500 روپے نہیں جا رہے. اور دوسری بات یہ کریں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 5,000 روپے جو کما رہا ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ بہت غریب لوگ ہیں، اس کے پاس میں موبائل لازمی ہے، تو وہ 500 روپے دے کے وہاں جا سکتا ہے، یہ نہیں دیکھ سکتا کہ لاء کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ضروری ہے. اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم یہ دیکھیں، اور جب یہ بیسک چیزیں دیکھ لیں تو پھر ہمیں اس سے آگے کی ٹریفک کی دیکھنے چیزیں کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. میڈم ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ خالی ایک چیز ہمیں ٹریفک کے لیے نہیں ہے
कि हादसा होगा तो फिर ही प्रॉब्लम होगी। चलते चलते गाड़ी में पेशेंट का अगर हार्ट अटैक हो गया, उसको प्रॉब्लम आ गई, तो कितने लोग हैं जो अवेयर है कि क्या करना है, किस तरह से उसकी हार्ट की जो है वो आपने पंपिंग करनी है और कैसे उसको स्टार्ट करके दोबारा जिंदा रखना है और उसको टाइम देने का फर्स्ट एड मिल सके। फर्स्ट एड में मैं यहाँ एक और बात कहना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट अच्छे कर रही है, प्राइवेट अदारे मिलकर कर रहे हैं, उनकी भी तारीफ करनी चाहिए। 11 22 वालों की सर्विसेज जो है वो बाइसाइकिल के ऊपर दे रहे हैं कि जहाँ पे मोटरसाइकिल जो गाड़ी नहीं पहुंच सकती ट्रैफिक में, तो बाइसाइकिल पे उनके लोग पहुंचते हैं। ये ना सिर्फ कराची में, छोटे छोटे शहरों में भी है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर समझें। अगेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, उसके अंदर बेसिक पढ़ें और सिंपल चीज़ें अपने साथ याद रखें ताकि आप अच्छा अपना पार्टिसिपेट कर सकें इस माशरे के अंदर, इस मुल्क के अंदर। सो बहुत ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया आज हमारे गेस्ट ने, और यहाँ जो हमारे सामने लोग मौजूद हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त सवालात किए। और ये सिलसिला ऐसा है रोड सेफ्टी का जो कि बहुत ज़्यादा एक्शंस मांगता है, हुकूमत की तरफ से भी और आवाम की तरफ से भी, दोनों तरफ से। जब तक दोनों तरफ से एक्शंस नहीं होंगे, हुकूमत भी जो है इसमें बहुत तेज़ी से सारे काम करे, इसमें सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, तकरीरें नहीं होनी चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और आवाम भी उनका साथ दे। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये दोनों तरफ से हम आगे बढ़ के काम करेंगे तो हम लोगों को बचा सकेंगे। और अफसोसनाक बात है, सबसे ज़्यादा अमवात सड़क पर नौजवानों की होती है। तो नौजवान लोग जो हैं जाँ बाग हो रहे हैं सड़क के ऊपर, जो है हमें अपने नौजवानों को, रोड पे जो लोग निकलते हैं उनको बचाना होगा। लोगों का टाइम भी बचाना होगा, लोगों के पैसे भी बचेंगे अगर ट्रैफिक का फ़्लो रहेगा, पेट्रोल जो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और लोग जो खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट होता है, किसी की डेथ तो हो जाती है, लेकिन जो लोग ज़ख्मी होते हैं, ऐसे कितने लोग हैं किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, और पूरी ज़िंदगी उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हम सब का फ़र्ज़ है कि हम सब एक ज़िम्मेदार शहरी का सबूत दें और एक दूसरे की हेल्प करें और अपनी भी जान बचाएं और दूसरों की भी जान बचाएं। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफ़र, हमारा पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा मसला है और पूरे पाकिस्तान का मसला है। इतने लोग जो हैं जो मुल्क में हम टेरर के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, इतने लोग जो हैं वो दहशत गर्दी में नहीं मरे जितने लोग पाकिस्तान में हर साल सड़कों पे मरते हैं। ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन कराची का ज़्यादा है। आपने देखा पिछले दिनों ट्रॉलर के इशू आए, उसके साथ साथ जो है वो हैवी ट्रैफिक का इशू आया, उसके अलावा जो है वो बाइक्स के इशूज़ और ऐसे वाक़यात हमने देखे कराची की सड़कों में, और इस तरह की अमवात हमने देखी कि जो हम कभी सोच नहीं सकते थे, जो हमने किसी फिल्म और किसी ड्रामे में भी नहीं देखे थे, वो वाक़यात हमने जो है वो कराची की सड़कों पे देखे। तो उस पर हम बात करेंगे चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में मेरे सामने गेस्ट मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मैं वेलकम कहता हूँ आप सब लोगों को। जो एक्सीडेंट्स होते हैं और खासतौर पर हेड इंजरी होती है, पहले तो ज़ाहिर बात है अगर मोटरसाइकिल पे आपने नहीं पहना हुआ हेलमेट तो फिर तो हेड इंजरी होनी है। उसके बाद अभी मेरे सामने केस आया, मैं आधी रात को रमज़ान में पहुंचा जना एमरजेंसी में। उसके बाद वहाँ पे जिस तरह मेरी पूरा जबड़ा टूटा हुआ, दांत टूटे पे, वहीं बुरे हाल में, वहीं टाँके लग रहे और कह रहे एक हफ्ते बाद फिर प्राइवेट में करवाया तो जाके हुआ। तो आप क्या समझती हैं कि कुछ सीनियर डॉक्टर भी होने चाहिए वहाँ पे और 24 आवर एमरजेंसी सिस्टम होना चाहिए एमरजेंसी के अंदर? इन कंटिन्यूशन ऑफ माई प्रीवियस थिंग, देखिए यही बात हो रही थी कि आप किसी एक चीज़ को नहीं दोष दे सकते। ऑब्वियसली आपका जो क्वेश्चन है कि जी हर मरीज़ को प्राइवेट ले जाए, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली हमें सिस्टम को डेवलप करना है, हेल्थ सिस्टम को भी। तो ट्रॉमा इज़ दी 4th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। और अगर आप लो सोशो इकनॉमिक जो हमारे कंट्रीज़ हैं वहाँ देखे जाएँ तो ये और मज़ीद ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम, जैसे कि बात हो रही है कि जी आप प्राइवेट सेटअप में भी आप ट्रॉमा केसेस को लेके जा सकते हैं, तो ये बर्डन को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है ये एक सिस्टम अब बन जाना चाहिए। और जैसे ये डॉक्टर साहब ने कहा कि जी MLO केसेस एंड ऑल दैट, तो अब हमें प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलाउ कर देना चाहिए कि दे कैन डील विद ट्रॉमा एंड ट्रॉमा पेशेंट्स। और इसका एक प्रॉपर एक सिस्टम और एक हेल्थ सिस्टम और ट्रॉमा सेंटर्स को मज़ीद जो है हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है, जो कि बर्डन ऑफ डिजीज़ है, एक सोशो इकनॉमिक बर्डन है हमारी कंट्री पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैं तमाम पैनलिस्ट का। भाई एक दफ़ा ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे पैनलिस्ट के लिए, इन्होंने ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया। आतिफ इकबाल साहब बहुत जी। टेक होम मैसेज मैं देना चाहता हूँ अपने यूथ को। हमारे राइट साइड पे जितने भी माशाल्लाह बैठे हुए सब सीनियर हैं और सब ने बहुत अच्छी बातें की। तो टेक होम मैसेज यही है कि टेक्नोलॉजी, जैसे हम कह रहे हैं गवर्नमेंट से डिमांड करें कि टेक्नोलॉजी यूज़ करें,
اور اچھی چیزیں کریں, روڈ اچھی بنائیں. صرف ایک چیز میں آپ کو ٹیک ہوم میسج یہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے موبائل تو یوز کر سکتے ہیں. آپ اپنے موبائل پہ گوگل کر لیں بیسک لا آف روڈ ٹریفک, اور وہ چیزیں اپنا لیں, اور پھر جا کے آپ لائسنس کے لیے جائیں. پھر اگر کوئی 500 روپے لیتے تو آپ گورنمنٹ کو جا کے کہیں کہ بھائی مجھ سے کس لیے 500 روپے نہیں جا رہے. اور دوسری بات یہ کریں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 5000 روپے جو کما رہا ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ بہت غریب لوگ ہیں, اس کے پاس میں موبائل لازمی ہے, تو وہ 500 روپے دے کے وہاں جا سکتا ہے, یہ نہیں دیکھ سکتا کہ لاء کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ضروری ہے. اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم یہ دیں گے, اور جب یہ بیسک چیزیں دیکھ لیں تو پھر ہمیں اس سے آگے کی ٹریفک کی دیکھنے چیزیں کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. میڈم ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ خالی ایک چیز ہمیں ٹریفک کے لیے نہیں ہے کہ حادثہ ہوگا تو پھر ہی پرابلم ہوگی. چلتے چلتے گاڑی میں پیشنٹ کا اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, اس کو پرابلم آ گئی, تو کتنے لوگ ہیں جو اویئر ہے کہ کیا کرنا ہے, کس طرح سے اس کی ہارٹ کی جو ہے وہ آپ نے پمپنگ کرنی ہے, اور کیسے اس کو اسٹارٹ کر کے دوبارہ زندہ رکھنا ہے, اور اس کو ٹائم دینے کا فرسٹ ایڈ مل سکے. فرسٹ ایڈ میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ اچھے کر رہی ہے, پرائیویٹ ادارے مل کے کر رہے ہیں, ان کی بھی تعریف کرنی چاہیے. 112 222 والوں کی سروسز جو ہیں وہ بائیسیکل کے اوپر دے رہے ہیں کہ جہاں پہ موٹر سائیکل جو گاڑی نہیں پہنچ سکتی ٹریفک میں, تو بائیسیکل پہ ان کے لوگ پہنچتے ہیں. اور یہ نہ صرف کراچی میں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہے. ہم اپنے اس کلوزنگ سیشن کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں, اور اس کلوزنگ سیشن کے اندر جو ہیں اگر ہماری ہمیں کچھ ہمارے مہمان ہیں, کچھ وہ مختصر اسپیچ کرنے جائیں گے, لیکن اگر ناصر حسین شاہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو ہم کیونکہ مسلسل 3 سے 4 سیشن کر چکے ہیں ابھی تک نا, اور ڈی آئی جی ٹریفک صاحب کے ساتھ بھی ہوا, اور مختلف پرسنالٹیز کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے سیشن رہا ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں سر کہ کچھ کمنٹس جو ہے آپ کے سامنے عوام کی جانب سے آ پائیں, کیونکہ آپ جو ہے وہ عوام کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس چیز کو آگے دیکھتے ہیں. تو روڈ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اور سڑک پر محفوظ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے پہلے ہم ایک بات یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے, آج کا ہمارا یہاں پہ اجتماع جو ہے یہ بنیادی طور پہ پاک فوج کی حمایت کے اندر اجتماع ہے. آج کا جو اجتماع ہے ہماری فورسز کے ساتھ اجتماع ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ پروگرام جو ہے یہ کینسل ہو جائے گا, یا یہ پروگرام آگے نہیں بڑھ سکے گا, تو ہم نے کہا کہ ہم بے فکر ہیں. ہماری پاک فضائیہ, ہماری بری فوج, ہماری بحری فوج اتنا زبردست کام کر رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمارا کوئی کام نہیں رکے گا پاکستان کے اندر. 2019 میں ابھی نندن کا جو واقعہ ہوا تھا, اس نے اس قوم کو اتنا کانفیڈنس دیا تھا کہ اس کے بعد یہ قوم جو ہے, پہلے بھی ہم فکر کرتے تھے لیکن اس کے بعد سے اب جو ہے ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دفاع بہت ہی مضبوط ہاتھوں میں. ہاں, ہر 25 کروڑ شہری جو ہے وہ فوجی ہے اس وقت. ہماری فوجی جہاں سرحدوں میں موجود ہیں, ہم سب نے بھی لڑنا ہے, اور ہم سب نے سوشل میڈیا کی جنگ لڑنی ہے, ٹیکنالوجی کی جنگ لڑنی ہے, پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے بھرپور اظہار کرنا ہے. اس کے لیے تیار ہے جناب؟ چلے جی مائک دیں گے, ہینڈ ریز کریں گے, جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ناصر حسین شاہ صاحب تشریف لے آئیں گے تو ہم جو ہے وہ آپ کے خیالات جانیں گے. اچھا, میرا سوال بالکل عام ایک شہری کا سوال ہے. میں یونیورسٹی روڈ پہ رہتی ہوں, جو کہ بہت ہی کوئی مین روڈ ہے, آپ سب کو پتہ ہے. اس روڈ پہ وقت سے آہستہ آہستہ ظلم ہوتا رہا ہے, کبھی سڑک کے حوالے سے, کبھی کسی اور حوالے سے, یہ سارے معاملات چلتے رہے. بالکل ایگزیکٹ یونیورسٹی روڈ پہ میرا گھر ہے. ابھی ہم گھر سے نکلتے ہیں اور ہمیں ہر قسم کا مسئلہ درپیش آتا ہے. سب سے پہلے تو وہی انوائرمنٹ بھی خراب ہے, دوسرا کٹ نہیں, بہت سارے مسائل ہیں, یہ سب کو پتہ ہوگا جو وہاں سے گزرتے ہیں. جی, تو بس میرا سوال یہ ہے کہ اس میں ہمارے ہی قریب اپارٹمنٹ کے ینگ لڑکے کی ڈیتھ ہوئی ڈیو ٹو, آپ سب کو پتہ ہے وہ کس انسیڈنٹ کے تھرو ہوئی. میرا صرف یہ سوال ہے عام شہری کی طرح کہ ہم گھر سے باہر ہی نکل رہے ہیں تو ایک انزائٹی, ڈپریشن, ٹینشن سب اٹیک کر رہی ہے, تو اس کا کوئی سلیوشن ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. یونیورسٹی روڈ, یہ آپ سب جانتے ہیں جو ایشو ہے یونیورسٹی روڈ کا, یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. 3 سال سے چل رہا ہے, اور آگے بھی ایسا لگ رہا ہے مزید 3 سال رہے گا. اور کتنا لوگوں کو پیٹرول خرچ ہو رہا ہے, پھر وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں ظاہری بات ہے ٹینڈر مکینک کے پاس جا رہی ہیں, پھر ٹائم لگ رہا ہے, پھر پیٹرول جو ہے امپورٹڈ ہوتا ہے. جی نیکسٹ کوسچن. جی جی, وہ روڈ کے اوپر بھی پھیلی ہوتی ہے, اور جو مین روڈ ہیں ان ہائی ویز پہ اوپر بھی کھڈے ہیں. آپ چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, کھڈے آپ کو نظر آتے ہیں. تو موٹر وے کا اور جو اندرون شہر ہیں یا ہائی ویز ہیں, ان کا فرق یہ ہے کہ کرپشن ہے. یہ کرپشن پاؤں کی بیڑی ہے, یہ آگے نہیں بڑھنے دیتی. میں ناصر حسین شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں
क्या आप मुतमिन हैं कि करप्शन आपने काबू पा लिया है? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट जी। मेरा ये कहना है कि हकीकत में इस मुल्क का असल मसला ही करप्शन है, और मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की माशाल्लाह सिंध में कोई 13 साल से हुकूमत, 13-14 साल हुकूमत रही, लेकिन अभी तक मुझे करप्शन खत्म होते हुए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर हुसैन है और मैं NED यूनिवर्सिटी से हूँ और मेरे साथ स्टूडेंट्स भी हैं। कुछ क्वेश्चंस उनके थे, लेकिन एक बहुत अहम बात है कि रोड सेफ्टी एक मल्टी सेक्टोरियल डायमेंशन है, जिसमें अभी तक हम एक सिंध गवर्नमेंट के अंदर रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट, क्योंकि ये बहुत इंटरकनेक्टेड है, वाटर सीवरेज बोर्ड की लाइन रप्चर होती है तो रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो ये तमाम चीज़ें, इवन नफ्सियात का एलिमेंट इसमें है, इसमें इंजीनियरिंग का डायमेंशन शामिल है। तो मेरी शाह साहब से गुजारिश है कि एक रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट, मुझे पता है इसका जवाब ये भी एक ये इशू है, और दूसरा एक इशू है कि हम अभी एक इन्फोर्समेंट के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि जी हम चालान करेंगे और सारे मुत्तफ़िक़े के डंडे मारेंगे और इन पे सख्त से सख्त चालान करेंगे, जिसकी 20,000 की बाइक है उस पर 5,000 का चालान करेंगे। तो एक एलिमेंट जो इंटरनेशनल रिसर्च ये साबित करती है कि हाई एनफोर्स, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर दिनेश मोहन की रिसर्च शामिल है कि हाई एनफोर्समेंट चालान बढ़ाने से एक्सीडेंट्स कम नहीं होते। उसका सलूशन ये है कि आप एनफोर्समेंट फाइन्स कम करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग ज्यादा करें, यानी 50 रुपए का चालान हो लेकिन 10 दफा हो तो वो ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। कोई लेडी को देना चाहूँगी। जो हमारे मंचले सड़क पे जो है ये करतब दिखा होते हैं और एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं, तो क्या हम ज़रूरी नहीं समझते कि हर जगह हमारे पास इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर्स होने चाहिए? कुछ सवाल अगर हम यहीं बैठ के ही सर के साथ कुछ शेयर कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम जी सबको, और बड़ा ज़बरदस्त रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो मुनक्किद की गई, और इसमें बहुत अवेयरनेस भी मिली होगी, मुख्तलिफ थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें भी आई होंगी। तो मैं रिजवान साहब से कहूँगा और उनकी टीम से कि वो एक सजेशंस बना के हमें भेजें कि जिनको हम लोग इम्प्लीमेंट करा सकें। पहला सवाल मेरी बहन ने, हमारी बेटी ने जो किया, मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी के सामने ये जो रेड लाइन का एक कॉरिडोर बन रहा है, वो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी रोड जो है वो डिस्टर्ब है। ज़ाहिर है आप दूसरे भी कुछ बहनों ने कहा और भाई ने भी यहाँ से बात की उस पर, और आपके इल्म में यूनिवर्सिटी रोड और पहले भी जिस तरह का था और बाद में जिसका अभी तस्करा किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, तो उसमें आपने देखा कि इस रोड को बहुत बेहतर बना दिया गया, और हर तरह से जो पहले थोड़ी सी बारिश होती थी तो दिनों तक रोड जो है वो रोडेबल नहीं होता था, मोटरेबल नहीं होता था, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश है तो उस दौरान तो पानी रुकता है, बाद में वो सारा ड्रेन होता है। रेड लाइन जो बनाई जा रही है वो भी आप सबकी वजह से कि आपको इजी रहे, जिस तरह हर जगह पे नया नेटवर्क बनता है, लेकिन जहाँ पे डिले ज़रूर हुई वो, और जिसके लिए चेयरमैन साहब ने भी सख्त नोटिस लिया है और CM साहब ने भी, और हमारे जो मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर भी हैं, वो आपने देखा होगा कि वक्तन फ़वक्तन आपको उस पर नज़र भी आते होंगे, वो ख़ुद उसको स्पीड अप कर रहे हैं ताकि एक्सपीडाइट हो जो काम है। जो रोड ज़ाहिर है जब डिगिंग होती है तो फिर नीचे से यूटिलिटीज़ का इश्यूज़ हैं पुराने, और ज़ाहिर है हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अंडरग्राउंड चीज़ें भी सामने नहीं हैं कि जी यहाँ पे कौन सी लाइन जा रही है और क्या कनेक्शंस हैं, इस वजह से उसमें डिले हुआ है। लेकिन अब उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और उसके साथ साथ जो अवेलेबिलिटी है, जो कॉरिडोर हैं, उनको आपने देखा होगा कि बेहतर किया गया है। कुछ जो कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड नेटवर्क ख़राब था उसको दोबारा बेहतर किया जा रहा है ताकि सबके लिए मोटरेबल हो। वो इस वजह से आप देखेंगे उसमें बेहतरी आएगी। और हम लोग
दीगर भी जगहों पे अक्सर बात की जाती है, क्योंकि आप सब लोग मेरे सामने जो हैं, एक तो स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारा फ्यूचर हैं, और आप ही और फिर और भी मैं देख रहा हूँ मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात बैठी हैं, सिविल सोसाइटी को मुख्तलिफ उनसे उनका ताल्लुक़ है। देखिए, हमेशा एक चीज़ सुनने को आती है मीडिया पे भी या जहाँ भी जाते हैं कि जी कुछ भी नहीं हुआ, 15 साल से गवर्नमेंट है, 14 साल से गवर्नमेंट है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन देखिए, आप लोग इन्हीं रोड, इन्हीं सड़कों, इन्हीं इलाकों में घूमते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत, और फिर आप तो जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मेरी बच्चियाँ, लेकिन वो इतने भी छोटे नहीं हैं कि उनको आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले या 4 साल पहले की बातें याद ना हो। कि जब भी बारिशें होती थी तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होती थी। आप शाहरा फैसल को देख लें, तारिक रोड वाला इलाका देख लें, शाहरा पाकिस्तान देख लें, बहुत सारे इलाके आपके सामने हैं। ये यूनिवर्सिटी पे आज ज़्यादा सवाल हुए हैं तो यूनिवर्सिटी रोड देख लें, हसन स्क्वायर से लेके ऑनवर्ड, या उसके पीछे जो जेल चौरंगी तरफ जा रहा है वो रास्ता, तो वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन होती थी। नर्सरी पे अमूमन जो शिकायत होती थी, अब ये चीज़ें बेहतर हुई हैं, इनको बेहतर किया गया। फिर आपने जो ओवरहेड ब्रिज देखे होंगे, अंडरपासेस देखी होंगी, वो भी इसी दौर में बनी है। काम की ज़रूरत है, बहुत काम की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह वो काम हो रहा है। और अभी जिस तरह हमारे इस बजट में भी काम हुआ है, नेक्स्ट जो भी बजट आ रहा है उस पर भी ख़ास तौर पर, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायत हैं कि सब ने फोकस करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए कराची में। फिर पानी के बहुत इश्यूज हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारे पास जो है, लेकिन उसको भी बेहतर किया जा रहा है ताकि बेहतरी आ सके। सॉलिड वेस्ट की बात की गई, जिसमें ईद कुर्बान का जिक्र भी हुआ और दीगर भी। तो मैं, क्योंकि आप लोग भी सब कराची में ही रहते हैं, अभी आपको कुछ अरसे से ज़रूर कुछ बेहतरी नज़र आई होगी। जिस तरह पहले कचरे के ढेर हर जगह में रहते थे, अब सफाई हो रही है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट का महकमा प्रॉपरली अब पूरे कराची में काम कर रहा है। पहले मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में होता था, तो एक डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, जब आदमी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है हमारे यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि आप साउथ में, ईस्ट में, या कब वेस्ट में आ गए, कब आप दीगर कोरंगी में चले गए। अब पूरे कराची में ये काम हो रहा है, तो उसमें बेहतरी आएगी। वो खास तौर पर ईद कुर्बान की बात की गई, मेरे बहन बेटी ने जो बात पूछी, तो बिल्कुल तसल्ली रखें, इस दफ़ा आपको बहुत बेहतरी नज़र आएगी और आपको गाड़ी चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरी कुछ और भी रहते हैं, वो कहेंगे। और दूसरा, करप्शन की बात हुई, बिल्कुल उस पर है, शिकायत है, और इस पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कई लोगों को सज़ाएं मिली हैं, उनको हटाया गया है, लेकिन उसको बेहतर किया जा रहा है ताकि पकड़ ज़्यादा हो। बल्कि एंटी करप्शन महकमे से मेरे ख्याल में कोई यहाँ पे नहीं होगा, नहीं तो आपको वो ब्रीफ करे कि उसको किस तरह ट्रांसपेरेंट किया गया है। अभी हालिया दिनों में जो हमारे मिनिस्टर हैं सरदार मोहम्मद बख्श मेहर साहब, या जो नए अभी चेयरमैन हैं जुल्फ़कार शाह साहब हैं, वहाँ पे उन्होंने उसको बेहतर किया है, ट्रांसपेरेंट किया है, ऑनलाइन किया है। आप हर चीज़ देखो, फिर उसमें आपको रिस्पांस भी मिलेगा। एक हो गया ना, किसी ने एप्लीकेशन दे दी कि जे यहाँ पे ये है, या शिकायत की, फिर उसका कोई रिस्पांस नहीं आता था। अब उसमें टाइम दिया गया है कि अगर किसी ने कोई शिकायत की है तो उस पर क्या हुआ, और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो, और ताकि प्रॉपर उनको पता चल सके। एक्सीडेंट्स की बात हुई, बिल्कुल रोड एक्सीडेंट कि आपने देखा कि बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हुए। उसको बेहतर करने के लिए ही ये जो फ़ाइन की बात की गई कि फ़ाइन कम हो। देखें, पूरी दुनिया में क्या है, हम लोगों में से बहुत सारे लोग गए होंगे, यहाँ आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप आराम से देख सकते हैं। यूएई करीब है हमारे, यहाँ दीगर ममालिक जो हैं, वहाँ पे क्या चीज़ है, वहाँ पे कोई स्ट्रिक्टनेस, कोई डंडे और उससे नहीं है, या किसी को बंद करने से नहीं है, सिर्फ फ़ाइन। और वो फ़ाइन अगर ज़्यादा होता है तो फिर अब पता चलता है, और फिर वो उस तरह की जो है वो नहीं होती जहाँ पे, तो वो भी प्रॉपर तरीका हमारे यहाँ राइज अब हो रहा है, और इसको बेहतर किया जा रहा है। फिर ये सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट हमारा काफ़ी हद तक
हो चुका है और बाकी थोड़ी जगहों पे रहता है, इससे भी बहुत बेहतरी आएगी, किसका कसूर है, कौन क्या कर रहा है। और ये जो इन्होंने नए डीआईजी साहब जो आए इन्होंने बहुत बेहतरी लाए हैं और इस पे सीएम साहब ने खुद इस पे कोई 10 के करीब मीटिंग्स की हैं, होम मिनिस्टर साहब ने भी, कि इसमें बेहतरी लाई जा सके। और आप देखेंगे कि इसमें बेहतरी आई भी है और मज़ीद इसमें ज़रूरत भी है। 1122 की सहूलत, जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि वो जगह जगह वो एमरजेंसी सेंटर होने चाहिए, तो आपको अब नज़र आ रही होंगी 1122 की एम्बुलेंसेस, और वो हर लिहाज से इक्विप्ड हैं कि जो भी खुदा न खास्ता कहीं पे कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो अगर फिर एक और बड़ा अलमिया होता था कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका इलाज नहीं होता था जब तक वो एमएलओ या पुलिस का वो जी आके केस नहीं होगा, तो डॉक्टर्स भी परेशान रहते थे। तो वो अब कानून साजी कर दी गई है कि कोई ज़रूरत नहीं कि वो जी इंतज़ार किया जाए, जैसे ही पेशेंट आए उसको फौरी तौर पर ट्रीट किया जाए ताकि उसकी ज़िंदगी जो है वो सबसे पहले है सबके लिए। तो इसी तरह के और सवालात हैं वो भी आ जाएंगे आपके उसके सामने। तो हम सब ने मिलकर बेहतरी लानी है। सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है, वो गवर्नमेंट की है, और उसके बाद हम सब की है। एज अ मिनिस्टर तो मैं सबसे पहले अपना ज़िम्मेदारी लूँगा, और फिर एज अ शहरी, एज अ पाकिस्तानी, फिर हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि हमने ख़ुद भी इन रूल्स पर अमल करेंगे तो बेहतरी आएगी। और इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर देखें, और बल्कि आपको जो प्रीवियस चीज़ें हैं, अगर हमारे थोड़ा सा नई चीज़ें को बात पुरानी चीज़ें थोड़ी भूल जाते हैं, लेकिन ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, ये जो गूगल है, यूट्यूब है, और नई, इसमें आप चले जाएं थोड़ा साल पीछे, थोड़े 2, 4, 5 साल, फिर 6 साल, फिर 8 साल, फिर 10 साल, फिर आपको इल्म होगा कि यहाँ पे क्या सूरत हाल होती थी और फिर क्या है। आसानी से कहने को तो बहुत है कि जी पहले तो ये कुछ होता था, और वो जो बात करते हैं उस वक्त ही करते हैं जब पूरे कराची की पॉपुलेशन 50,000 से भी ज़्यादा नहीं थी। आज दुनिया के बड़े शहरों में से है, और यहाँ पे लोग सिर्फ कराची घूमने नहीं आते बल्कि हर रोज़ एक बड़ी तादाद बसने के लिए आती है, और ये एक अलमिया भी है और एक हकीकत भी है। तो और कोई रिस्पॉन्ड, कोई क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर हूँ सर। बिल्कुल। अच्छा, ये अब कुछ हमारे जो गेस्ट हैं इनसे मेरी गुजारिश है कि नासिर भाई, ये सिर्फ आपने जवाबात दी, आपकी असल तकरीर बाकी है अभी। नहीं, अभी एक और हो रही है तकरीर आपकी रोस्टम पे ना। ये तो आपने आवाम की एक अदालत में आप आज आए और आपने कहा कि जनाब लोग सवाल करें, स्टूडेंट सवाल करें, और ये बड़ी बात थी। एक दफ़ा ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जी। बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपने जो है जवाबात दिए। तो मैं अपने मेहमानों को 2 से 3 मिनट देना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, कि वो रोस्टम पे कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें, और फिर हम नासिर शाह साहब के क्लोजिंग वर्ड्स जो ज़रूर सुनना चाहेंगे। मुराद सोनी साहब CPK कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ़ हैं, सर प्लीज़। देखिए, CPK कम्युनिटी पुलिसिंग बोर्ड कराची के बारे में हमने आपको पहले भी कहा कि इसके 3 बेस पे हम काम करते हैं। CPK कम्युनिटी पुलिसिंग बोर्ड कराची जो बिजनेसमैनों की एक छोटी सी एक तंजीम समझ लें या एक NGO समझ लें आप। हम चाहते हैं कि ये शहर हमारा क्लीन हो, ये शहर हमारा ग्रीन हो, और ये शहर हमारा स्ट्रीट क्राइम से पाक हो। यही 3 हमारे बेसिक, ये 3 चीज़ें हैं जिस पे हम काम करते हैं। तो इसमें 2 काम पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। एक, हम कराची में तकरीबन 1500 कैमरे हम लगा चुके हैं, जिसकी कमांड और कंट्रोल जो है वो पुलिस स्टेशन में हमने दिए हुए हैं। इसके साथ एक जदीद तरीन कैमरे जो NPR कैमरे हैं वो हमने कराची में तकरीबन 100 के करीब कैमरे वो भी हमने नस्ब किए हुए हैं। इसकी वजह से जो है स्ट्रीट क्राइम में बकुल पुलिस के काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई है।